not coming. But as far as I am of the opinion that you should consult with a student to be regular in class. You should advise them, you should suggest them not to be absent from the class, because regularity is most important everywhere. Without regularity, that big achievement is not possible. Okay, that common victory and the common achievement is possible by everyone, but as far as the higher achievement, extraordinary success is concerned, that is possible when you are really very sincere and laborious for your work. You are you are thinking from bottom to your heart, then that superior success is possible. Suddenly the people have the very common efforts and expect highest achievement in life. Then highest achievement is not possible without superior work, without highest hard work, without very much hard work. Understand? To get something better in life, do something better in life, to get something better. Okay, you know the one thing that medicine is bitter, medicine is bitter, medicine tastes bitter, but it cares the health. Same thing, the work before the achievement, work for success is harder, bitter, and difficult. Okay, painful. Work for success always harder, tougher, painful, stronger, but the achievement is relaxing, achievement is fruitful, achievement is full of pleasure, achievement is full of happiness. That is why don't think about the struggles, hurdles of the way, think about the relaxing of the victory, think about the success of victory, pleasure of victory. Today, not today, with everyone, the person who is going to achieve something in his or her life, at the beginning, on the way, the difficulties they face, they fear with them, they feel very uh, tough, they feel a type of a pain while struggling something, while struggling somewhere they feel pain, but ultimately after the victory they feel relaxed. That is why for that relax, you should shake yourself on the slack, you should keep yourself on slack. मतलब आपको अपने आप को दाव पर लगा देना चाहिए आने वाले एक अच्छे समय की कल्पना के लिए, कि आपका समय अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो कितनी थकावट होती है, जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं थोड़ी देर बैठते हैं तो हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है, बड़ी शांति मिलती है। ठीक है ना? रात इसलिए बनाई गई हो, कितना भी थक जाओ सुबह एक फ्रेशनेस के साथ हम उठते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि ये कभी मत सोचो कि यार इतना काम करना पड़ रहा है, रात हो जाएगी तुम लोग सो ही जाओगे। यही सोचो कि आज की तो बात है। किसी से जब हम पूछते हैं कि भाई आपने हजारों किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर ली, हाउ डिड यू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर, देन द पर्सन रिप्लाइड, आई थॉट अबाउट द सिंगल स्टेप। आदमी ने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ एक कदम के बारे में सोचा। आई थॉट अबाउट द सिंगल स्टेप, एंड व्हेन पर्सन थिंक अबाउट द सिंगल स्टेप, ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट्स द जर्नी। इसी प्रकार जब एक स्टेप के बारे में सोचता है आदमी, धीरे धीरे यात्रा पूरी कर लेता है। सेम कॉन्सेप्ट इन लर्निंग, व्हेन यू थिंक टू लर्न ओनली सिंगल सेंटेंस और सिंगल टेंस or a single word of the vocabulary, one day you will have a big collections of sentences, tenses or vocabularies. Understand? So that is why don't think about not learning. Don't think negative. Always think positive and be regular in learning. Understand? तो मैंने आपको कैन में बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था, मैं बता दिया था, कैन बता दिया मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको शुड बता दिया, इनके साथ मैंने आपको बी भी बता दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको मस्ट भी बता दिया। ठीक है, नहीं बताया मस्ट? चलो तो आज मैं आपको मस्ट बता दे रहा हूँ, शायद बता दिया, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। हाँ पहले बता दिया था, चलो एक बार और देख लेते हैं। मस्ट का शॉर्ट में देख लेते हैं। मस्ट का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हम कंपलसरी एक्शन की बात करते हैं। जैसे कि जब आप कार चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए या लगाना ही चाहिए? बताओ लवकुश भाई। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट यूज सीट बेल्ट while
ड्राइविंग कार। तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए कि लगाना ही चाहिए? लगाना चाहिए। अच्छा, रोड पे लेफ्ट साइड चलना चाहिए कि चलना ही चाहिए? चलना ही चाहिए भाई, रोड पे लेफ्ट साइड आपको चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर रॉन्ग साइड चलोगे तो एक्सीडेंट। तो मस्ट समझ में आ गया? ठीक। इसी प्रकार मस्ट के साथ बी लगा दो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक सैनिक को अलर्ट होना चाहिए कि अलर्ट होना ही चाहिए? अ सोल्जर मस्ट बी अलर्ट। भाई अगर सोल्जर अलर्ट नहीं है तो आतंकवादी आ जाएगा, देश में अंदर घुस जाएगा, तो अलर्ट होना चाहिए उसको। ठीक है ना? चलो, तो जैसे कि कई बार जो कंपलसरी एक्शन होती हैं वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि जो आतंकवादी है वह अरेस्ट होना चाहिए कि अरेस्ट होना ही चाहिए? होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? टेररिस्ट। आतंकवादी को क्या बोलेंगे? टेररिस्ट। टेररिस्ट मस्ट बी अरेस्टेड। टेररिस्ट मस्ट बी अरेस्टेड। आतंकवादी को हिरासत में लिया जाना ही चाहिए, क्योंकि भाई आतंकवादी है वो, ना जाने क्या करेगा। ठीक है। टेररिस्ट मस्ट बी अरेस्टेड। ठीक है। अच्छा, तो मस्ट भी समझ में आ गया। ठीक है। मस्ट हैव की बात कर लेते हैं। जरूर चाहिए, क्या हो जाएगा? मस्ट हैव मतलब जरूर पास होना चाहिए। जरूर पास होना चाहिए, मतलब आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपके पास टिकट होना चाहिए कि होना ही चाहिए? क्या होना ही चाहिए? क्या हो जाएगा? यू मस्ट हैव टिकट। जर्नी टिकट या टिकट, यू मस्ट हैव टिकट। ये थोड़ी कि आएगा तो समझ लेंगे साहब नहीं ले पाए थे, ऐसा तो नहीं होगा, होना ही चाहिए। अब बताइए, अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या होना ही चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। यू मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। लाइसेंस। अच्छा, ये बताइए कि जब आप किसी दूसरे कंट्री जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए कि होना ही चाहिए? यू मस्ट हैव पासपोर्ट। नहीं तो अपना देश आपको अलाउ नहीं करेगा। भाई पासपोर्ट देखेंगे, आपकी टिकट पे लिखा रहेगा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, तो वो पासपोर्ट चेक करेंगे, और जब वहाँ जाओगे तो वहाँ वीज़ा चेक करेंगे कि आपके पास अराइवल वीज़ा है कि नहीं। नहीं तो आपको रिटर्न कर देंगे। भाई जिस गाड़ी में आए, जिस फ्लाइट में बैठ के वापस फिर से इंडिया चले जाओ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यू मस्ट हैव पासपोर्ट। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार बहुत सी चीज़ें जहाँ पे बहुत इमरजेंसी की बात होती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? मस्ट हैव। समझ गए? चलो, तो इतनी सी बात है मस्ट हैव के साथ। अच्छा, माइट भी हमने बता दिया था आपको, शायद पहले बता दिया था माइट। इसी प्रकार माइट का मतलब होता है क्या? शायद। और इसका अर्थ भी होता है सकना। इसका मतलब भी होता है सकना। जैसे कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इट माइट बी रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट माइट बी रेन टुडे। ठीक है। शायद आज बारिश हो सकती है। और जैसे कि कोई वस्तु है तो हो सकता है ऊपर से दिखने में ठीक ठाक लगे लेकिन अंदर खराब है, तो हम बोल देते हैं कि ये खराब हो सकती है। ठीक है। ऊपर से ठीक लग रहा है लेकिन ये खराब हो सकती है, तो क्या बोलेंगे? इट माइट बी। अलग होता है। फल फ्रूट्स में क्या होता है? खराब होना मतलब होता है डिके, मतलब सड़ा हुआ होना। इट माइट बी डिकेड। यह डिके है ना। अब जैसे मान लो कंप्यूटर है, पुराना है, तो हम बोलेंगे इट माइट बी ओल्ड। यह डैमेज हो सकता है यह आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। इट माइट बी आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब जो फंक्शन ठीक से काम ना कर रहे हो वैसा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि सी माइट बी ओल्ड, वह ओल्ड हो सकती है।
शी माइट बी। जब कई बार फ़ोन पे बात करते हैं तो आवाज़ से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की क्या आयु होगी, और बहुत हद तक पता लग जाता है। तो अपन अंदाज़ा लगाते हैं, हो सकता है शी माइट बी ओल्ड, शी माइट बी अबव 50 ईयर ओल्ड, अबव 50 ईयर्स ओल्ड, हो सकता है 50 से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार माइट का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। और कुछ माइट का प्रयोग माइट बी तो हो गया, अब कर सकते हैं माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग वहां पे करते हैं जैसे कि शायद आपने देखा हो। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि शायद आपने देखा हो, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई। यू यू माइट हैव सीन, शायद आपने देखा हो। अच्छा, शायद आपने पढ़ा हो, तो क्या हो जाएगा भाई। यू माइट हैव रेड, यू माइट हैव रेड। शायद आपने महसूस किया हो, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, ठीक है। शायद आपने खरीदा हो, बॉट, थर्ड फॉर्म लगा, यू माइट हैव बॉट। शायद आपने खाया हो, यू माइट हैव ईटन, ठीक है। शायद आपने बेचा हो, यू माइट हैव सोल्ड। तो कोई दिक्कत माइट हैव में, कोई दिक्कत समझ में आया, माइट हैव बस। तो माइट हैव इतना ही है, और माइट हैव समझ गए। तो अक्सर हम ऐसी बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि जिले में एक दुर्घटना घटी है, an accident took place in district you might have read in newspaper today, शायद आपने अखबार में पढ़ा हो। तो ऐसी बात करते हैं, हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम जनरली अगर मॉडल की बात करें तो हम इसमें विल और शैल का प्रयोग करते हैं। वैसे ये हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन इन्हें हम मॉडल भी मान लेते हैं, ठीक है। शैल क्या क्या हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डायरेक्ट में, लेकिन जब हम कभी हैव लगा देंगे, कभी बी लगा देंगे, तो उनके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। जनरली थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। आप थोड़ा सा पैसिव वॉइस जब स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल और सेल भी एक मॉडल है और इसको भी हम एक प्रकार से यूज कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो विल सेल जो है दोनों फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सीखने का कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ क्या लगा देंगे, शैल, और बाकी सबके साथ क्या लगा देंगे, विल। बात खत्म। आई और वी के साथ लगा देंगे सेल, बाकी सबके साथ विल, ठीक। तो जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल कर ही लेते हैं विल का। जैसे क्या तुम आओगे, तो क्या बोलेंगे, विल यू कम। क्या तुम आओगे, विल यू कम। तो आप बोलते हो भैया बुलाओगे तो आ जाएंगे यार, नहीं बुलाओगे तो कहाँ से जाएंगे, विल यू कम। कुछ लोग बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्या, सरप्राइज देने नहीं, खाना खाने के लिए। शादी विवाह में लड़के लोग तो क्या करते हैं, एक कार्ड आ जाए तो पूरे दोस्त जाते हैं 15-20। भोपाल भोपाल में जो रहते हैं रूम लेके, उनके साथ यही है। दोस्तों में फ़ोन लगा के बोलेंगे क्या किसी के पास कार्ड वार्ड आया है क्या। एक का आ गया तो चले गए, ये कौन, ये मेरे मामा का लड़का, ये मेरी बुआ का लड़का, ये मेरे बड़े पापा का लड़का, ये मेरे चाचा का लड़का। सब पूरा ऐसे मित्र मंडली बना के चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, हम भी भोपाल में रहते थे तो हम भी बहुत बहाने मारते थे। एक बार मकान मालिक ने कई बार हमें खाली करने की धमकी दे दी, रूम खाली कर दो फटाक से। जनरली क्या है, लड़के लोग नाच गाना करते थे, कुछ भी पार्टी मना रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। अब अंकल आ गए, क्यों भाई, क्यों ये साउंड इतना तेज तेज चल रहा है, स्पीकर तुम्हारा बंद करो उसको, क्या बात है। अंकल जी, इसका बर्थडे है। ठीक है, एक बार बर्थडे हो गया, 4-5 दिन बाद फिर नाच गाना, फिर दोस्त आ गए, क्यों भाई, अंकल जी इसका बर्थडे है। फिर आ गए, अंकल जी इसका बर्थडे है। फिर तो क्या हुआ कि पता चला कि यार अब फिर आज नाच गाना करना है, तो पहले ही मिठाई लेकर अंकल जी के पास पहुंच गए, अंकल जी प्रणाम, अंकल जी आशीर्वाद दे दो, क्यों भाई,
अंकल जी बर्थडे है। अंकल जी समझ जाते थे बेटा बर्थडे बर्थडे नहीं है आज, फिर तुम्हें नाचना कूदना करना है वहाँ पे, इसलिए ऐसा होता है।